पेड़ एक ऐसे हैं जो आपको निस्वार्थ देते हैं। आपको केवल एक बार वृक्ष लगाना है, बाकी वो आपको ऑक्सीजन देंगे, छांव देंगे, फल देंगे और देते ही रहेंगे। If a 30% of the land is green, we can call it a green school. Here we see the 60% of the land is green. So it's a marvelous school. Mr. Mahendra Pratap Singh, who is the correspondent of the school, is waiving the school fee for all the girl children. It's an incredible, I never heard of anybody doing in a private school. You know, you have anything to say about it? मधु जी, इधर क्या कार्यक्रम हो रहा है आपका? संसद के बारे में कुछ बोल सकते हैं? मेरी जो संस्था है सर्वित, वी आर वर्किंग फॉर एनवायरमेंट क्लीनिंग एंड women empowerment. We have 9 objectives of different aspects of social issues, and we especially we are working for environment cleaning. और सावन आ गया है और हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, और मथुरा ग्रीन चैप्टर जो हमने खोला है उसकी शुरुआत हम KDS स्कूल से हमने किया है, इंटरनेशनल स्कूल जो है, और उसके जो ओनर हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि मथुरा में पहला हस्ताक्षर हम इस स्कूल में करें, और हमें पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद करी है इसमें, और स्वयं वो पर्यावरणविद हैं। साथ ही में अशोक सर का, जो कि हमारे मथुरा के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारी संस्था के, और पेट्रन भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगी कि समय समय पर उन्होंने मथुरा में हम लोगों को बुलाकर काम करने का और सहयोग देने की पूरी चेष्टा करी है। वैसे तो मैं 2018 में मैंने हेमा मालिनी जी के साथ काम किया, लेकिन तब उतना ज़्यादा काम हो नहीं पाया क्योंकि मैं अकेली थी। आज हमारी एक बड़ी टीम है, और भैया का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि हम ये काम कर पाए। ये बोलिए, आपने कैसा KDS इंटरनेशनल स्कूल को चूज किया? ये कोई क्राइटेरिया होता है? कैसा होता है? इट्स अ स्पेशल क्राइटेरिया फॉर इट। इफ 30% ऑफ द लैंड इज ग्रीन, तो वी कैन कॉल इट अ ग्रीन स्कूल। हियर वी सी 60% ऑफ द लैंड इज ग्रीन, तो इट्स अ मार्वेलस स्कूल. Okay. If somebody wants, they are contributing in the upgradation of the groundwater and environmental protection. Phenomenal. And I have another question. If somebody else want to participate and invite you to do the plantation in their property, in their school, any particular organization, like schools only you do, or any other areas you do also, how does it work? Basically, we are inculcating the values and emotional concern amongst the masses, especially youth, because जो युवा वर्ग है वही हमारी भावी पीढ़ी है, इसलिए हमने उनको टारगेट किया. बट वी आर वर्किंग विद लेडीज़, अदर NGOs also, ladies clubs, universities, and special groups of an organization which are associated with Yamuna, Ganga, as I am the honorable member of Ganga Selection Samiti also. Recently, Honorable CM awarded me as a Ganga Haritima Samman, and Honorable Prime Minister mentioned my name for plantation. That is great. You know, my question is, only schools qualify to be the part of this program, or anybody who has a land can call you for plantation if they want it? How does it work? Not only school, a person who has or have the vision what is green, if they think green, they do green, we can add them. Great. And any other things you do for them? Because I'm so impressed with all the school children doing by themselves. You know, it's so great, and I can see all the kids are so enthusiastic and with a big smiling face. You know, and say me, what other things these children can take advantage of your NGO? The next step is the solid waste management. That is a critical issue for all the environment. We are not working for a mega afforestation program. We are also working for solid waste management, जो कि भारत के लिए एक disaster बन गया है. That is my area of specialization. In next step, we will teach them or train them to be a green brigade. Okay. Do you have any other program for the children too?
Like any training programs? For your kind information, I am working with these 9 objectives since last 15 years. I have added more than 700 schools of India, and so many programs are working. We have a very good team in other cities, other states. We are working in 21 cities of UP and 7 states of India. You know, I'm so impressed to be here in KDS International School because I just came to know Mr. Mahendra Pratap Singh, who is the correspondent of the school, is waiving the school fee for all the girl children. It's an incredible, I never heard of anybody doing in a private school. You know, you have anything to say about it? इनके लिए मैं यही कहूँगी कि कृष्ण की नगरी में आकर महान शख्सियतों से मिलना हुआ और इसमें से रियल ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए, वो मुझे अकेले अभी यही मिले और मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी महान विभूति से मेरा मिलना हुआ और इन्होंने मुझे अपनी सिस्टर कहा और मैं इनके लिए बहन की तरह ही से ही काम करूँगी. बिल्कुल. धन्यवाद. अशोक भाई, आप you are a retired IPS, right? जी. You know, so honored to meet you and talk to you. You want to add couple of words? थैंक्स. डिस्ट्रिक्ट मथुरा में सबसे मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ सर कि सर्वहित कल्याण सेवा समिति से मैं जुड़ा और जुड़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट मथुरा का मुझे मैम ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और आपके साथ मैं जुड़ रहा हूँ खासतौर से पर्यावरण के क्षेत्र में. रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे पायस मिशन मैं फील करता हूँ कि बजाय रिटायरमेंट के हम घर रहे हैं और रिटायर्ड लाइफ व्यतीत करें, अब एक मकसद मिल गया है जीवन जीने का और दूसरों को जीवंत करने का. तो ये ऐसा मिशन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है लाइफ में. जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी, हमारा जो स्पेस रहेगा, हमारा वातावरण है, पौधों की वैल्यू हमेशा रहेगी. मैं सौभाग्यशाली हूँ इससे. और इसके जो 9 एम्स हैं उनको भी मैं कोऑर्डिनेट करूँगा. और सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है महेंद्र प्रताप जी हमें मिल गए और महेंद्र प्रताप जी ने जो हमें सहयोग दिया है उसके लिए हम आभारी हैं आपके. One final question, I am done. Okay. It is said this government is not promoting green India. You know, they are promoting factories and all those things, but not essentially friendly with the green. You have anything to say about the government and how much support you get? You know, some light if you can throw it. जी. इसके लिए मैं बस चंद शब्द कहना चाहूँगी. हम देशवासी जितने भी हैं हमारे. There is always a complaint from the opposition on these things. नहीं, we will not including here the political issues and all. मैं ये कहना चाहूँगी ये मथुरा नगरी क्या गवर्नमेंट की है? ये हमारी है ना. एज अ सिटीजन हम अपने देश को क्या देते हैं, देश हमें क्या दे रहा है, हम शिकायतें क्यों करें, शुरुआत हम क्यों ना करें. मेरा ये मानना है कि हम स्वयं शुरुआत करेंगे. गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या हम उन पेड़ों को बचा रहे हैं? 30 करोड़ लगाए हैं तो क्यों नहीं हम 30 करोड़ लोगों ने एक पेड़ अडॉप्ट किया और उसको जीवंत रखने की कोशिश करी. गवर्नमेंट कितना करेगी, ये भी है ना. बस इतना कहना था. Thank you. महेंद्र प्रताप सिंह जी, you want to add a word or two? देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ी पवित्र पावन स्थली भगवान योगीराज कृष्ण की मथुरा वृंदावन. और बड़ी सदियों से परंपरा रही है हमारे यहाँ कि जब भी कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो मातृशक्ति खड़ी होती है. और मातृशक्ति के रूप में आज हमारी बहन माननीय मधुवती मेरे से चल के आई KDS इंटरनेशनल परिवार की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और वंदन करके नमन करके और चंदन करते हैं उनका. और हमारे बड़े भाई पूजनीय अशोक जी जो पुलिस अधीक्षक रहे हैं, उनके सहयोग से आज KDS इंटरनेशनल को संस्था सर्वित की तरफ से अडॉप्ट किया गया है. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, गर्व की बात है. और मैं आप दोनों महान भावों का, महान मूर्तियों का मैं KDS की तरफ से अभिनंदन करता हूँ. और हमारा प्रयास है कि जो आशा बहन जी ने हमसे की है उसमें हम खरे उतरेंगे और KDS इंटरनेशनल ही नहीं, आसपास के पूरे एरिया को क्लीन मथुरा बनाएंगे. और यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे. जैसा बहन जी चाहती हैं, लोग आएँ, देखें कि एक पर्यटक के रूप में हम इस मुकाम को हासिल करेंगे. और हमारी यही आशा है, यही विश्वास है. मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि ये KDS अपने आयामों को छुएगा. बिल्कुल. One last question to Jitendra bhai. You know, you took your time and came here for the green tree program.
we thank you, for giving time for the interview. आप बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस इधर कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो क्या है, यहाँ पे तो हर वर्ष वृक्षारोपण होता है इस स्कूल में, और हम हर वर्ष करते रहे और लगातार करते रहे और करते रहेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज बहन जी से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई, इनसे परिचय हुआ। ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ देश में है जो निस्वार्थ ये सब कार्य कर रही हैं। आप ये याद रखिए कि हम जब किसी को कुछ देते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं इससे हमें कुछ मिलेगा, लेकिन प्रकृति, पेड़ एक ऐसे हैं जो आपको निस्वार्थ देते हैं। आपको केवल एक बार वृक्ष लगाना है, बाकी वो आपको ऑक्सीजन देंगे, छांव देंगे, फल देंगे और देते ही रहेंगे। एक पुत्र आपको एक पीढ़ी तक सुख देता है, लेकिन जो एक वृक्ष होता है वो लगभग 10 पीढ़ी तक तो देता ही देता है। कोई कोई वृक्ष ऐसे होते हैं 50-50 पीढ़ी तक सुख देते हैं। अगर हर आदमी अगर एक एक वृक्ष लगा ले, भाई 140 करोड़ है, 130 करोड़ है, कितना, अगर आधे भी लगा लें, एक वृक्ष लगाने में क्या जाता है, 50 करोड़ वृक्ष हो जाए, समस्या ही खत्म हो जाए हर चीज की। हमारा ये सब जितनी भी समस्याएं हैं, सब प्रदूषण है, सब अपना आप ही खत्म हो जाए। तो वृक्षारोपण तो ये तो बहुत महान कार्य है, और बहन जी हमारा इतना महान कार्य कर रही है। इनका ब्रजभूमि में बहुत स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, हम इनको बहुत बहुत आभारी हैं। आज इनका परिचय हुआ है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण।